Assalamu alaikum and welcome to the seventh week of Total Quality Management. And here I am, your lecturer, Mohammad Irfan. Before starting the seventh week and the new lecture, let's we have a quick review of the last week. In the last week, we have discussed about the leadership and how the leadership can change and create the culture in the organization. On it, we have discussed कि किस तरह जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर चेंज हो रहा होता है और उसका जो है वो हमने देखा है कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो एक विजन होना चाहिए. On the vision we have a purpose, then we have a core values and a belief who we want to be, and then a mission. मतलब विजन से जो है वो हमारे पास पर्पस आया और पर्पस के साथ हमने मिशन की बात की. उसके बाद जो है वो हमने कुछ जो जितनी इसके ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी. ठीक है, फिर हमने देखा कि कल्चर इज एनी बिजनेस may be defined then as a belief that private an organization about how business should be conducted and how employees should behave and should be treated. Any organization need a vision framework that includes its guide philosophy, core values and belief, and a purpose. This should be combined into a mission. मतलब कंपनी की कोर वैल्यूज और फिलॉसफी और द फ्रेमवर्क और उनके जो बिलीव है और पर्पस इन सबको कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास मिशन बन जाता है. The guiding philosophy drives the organization and is shaped by the leader through their thoughts and actions. It should be reflect the vision of organization rather than the vision of single leader and should involve with the time. All the organization must have and hold on the core elements. तो ये जो हमने सारी डिस्कशन की थी उसके ऊपर जो है वो ये कुछ वर्डिंग्स लिखी हुई है. So now we have a example of हमने एक एग्जाम्पल देखी थी. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि वो एग्जाम्पल जो है वो किस तरह जो है वो ये बुक की आपकी एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसको ज़रा रीड कर लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या बात हो रही है. टू एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, one in the private sector and one in the public sector, develop their vision, mission, and values and are role model of culture of the total quality excellence are given in the insert below. देखिए, कंपनी को अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करनी है तो मैंने हमने आपसे बात की थी ना पहले, when we were in your initials की हमने बात की थी कि how you have to behave in the company, you have to behave as a leadership, you have to change your processes, you have to re-engineer your processes. और ये तमाम री-इंजीनियर और तमाम चेंज प्रोसेसेस कौन करता है? ये तमाम चीज़ें जो है वो एक लीडर चेंज कर रहा होता है कंपनी के अंदर. अगर आपकी कंपनी के अंदर जो इंसान मौजूद है जो आपकी कंपनी को लीड कर रहा है और ही हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर, तो ये तमाम ऑप्शन आपको अपनी कंपनी में होते हुए नजर आ रहे होंगे. अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, ठीक है, to enable the company to set direction and achieve its vision, the senior management team address priorities that improvement. These are driven by a business improvement process, which consists of articulate a vision,
determine the action to realize the vision, define, measure, and set targets, then implement a rigorous review mechanism. Each member of team takes responsibility for one of the excellence model criteria. They develop improvement plan and personally ensure that these are properly resourced and implemented, and their progress is monitored. Improvement identified at local level are prioritized and resolved by local management against the organization annual business plan. तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है कि हाउ द प्राइवेट सेक्टर कैन इम्प्लीमेंट द लीडरशिप, how they making your vision into a mission, how they are concerned about your core values. अब जैसे कि ऑनलाइन क्लासों की आप एग्जांपल ले लें कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, इट इज आल्सो अ प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर एक कंपनी मौजूद है और वो कोई नई चीज कल्चर या इस तरह की चीज जो है वो अपने एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय के बेनिफिशियल हो उसको लेके आ रही है और अपने लोगों को बता रही है कि दिस इज योर कोर वैल्यूज एंड बिलीव्स। मतलब कि एम्प्लॉय को जो है वो ऐसा महसूस भी होना चाहिए कि उसके मतलब उसकी अच्छाई के लिए बात की जा रही है। उसके लिए आपको दिखा ना, टू इनेबल द कंपनी टू सेट अ डायरेक्शन एंड अचीव द विजन, कि कंपनी को जो है वो ये इनेबिलिटी करनी पड़ेगी कि एक डायरेक्शन बनाए ताकि विजन को अचीव किया जाए। द सीनियर मैनेजर टीम एड्रेस प्रायोरिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि उनको जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए प्रायोरिटीज के बारे में जो है वो बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को। दे आर गिवन बाय अ business improvement processes which consist of articulate a vision, determine the actions to realize the vision। ठीक है, मतलब कि उनको इस तरह की टीम बनानी पड़ेगी जो कि है हमारी, उनकी प्रायोरिटीज जो है वो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और वो आर्टिकुलेट करें आपके विजन को। डिटरमाइन द एक्शंस टू रियलाइज द विजन, मतलब इस तरह के एक्शन भी जो है परफॉर्म करके दिखाएं ताकि कंपनी का जो है वो विजन की तरफ जाना शुरू हो जाए। डिफाइन ट्रेजर एंड सेट टारगेट्स, छोटे छोटे जो है वो आपके उनके पास ट्रेजर्स होने चाहिए और कुछ टारगेट्स जो है वो सेट होने चाहिए और उनके पास जो है वो रिव्यू का मैकेनिज्म होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर जो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेट्स के अंदर कोई हर्डल्स आ रहा है, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, तो उसका जो है वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वो उनके पास उस टाइम पे मौजूद होना चाहिए, या उनकी जो जितनी भी टीम है वो इतनी अ, मतलब कि कॉम्पिटेंट है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऑन द स्पॉट जो है वो सॉल्व हो रहा है। ईच मेंबर learn takes responsibility to one of the excellence model criteria. They develop improvement plan and personally ensure that these are properly resourced and implemented. Their progress is monitored। मतलब तमाम चीज़ ऐसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ईच मेंबर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वन ऑफ द एक्सेलेंस मॉडल क्राइटेरिया, मतलब जो मॉडल क्राइटेरिया है उस हिसाब से जो है वो तमाम आपके जितने भी लोग हैं वो इक्विप्ड हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की जा रही है, ठीक है, तो तमाम लोग जो है वो रिसोर्स्ड हैं और अपने काम को इम्प्लीमेंटेड हो रहे कर रहे हैं। एंड दैट प्रोग्रेस इज मॉनिटर, और उनकी जितनी भी प्रोग्रेस है उसको डिफरेंट लोगों से मॉनिटर किया जा रहा है। इम्प्रूव आइडेंटिफाइड एट लोकल लेवल एंड प्रायोरिटाइज एंड रिसोर्स बाय लोकल मैनेजमेंट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एनुअल बिजनेस प्लान, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल बिजनेस प्लान है उसको किस तरह जो है वो डिफरेंट टीम्स के जरिए जो है वो लोकलाइज करके, मतलब डिसेंट्रलाइज करके जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है।
देखिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि यू हैव अ वन मैनेजमेंट, you have the one decision team, and you have to follow this all the management and the decision team from your office। मतलब सिर्फ एक ही जो है वो आपके पास टीम मौजूद है, एक ही आपके पास जो है वो मैनेजमेंट मौजूद है जो कि आपको जो है वो एंटरटेन कर रही है। इट शुड बी फ्रॉम योर हेड ऑफिस, इट शुड बी फ्रॉम योर ऑफिस नेक्स्ट टू योर ऑफिस, लेकिन वो टीम एक ही मौजूद है। देखिए इसमें मसला क्या होता है, ऑल्दो दे हैव अ वेरी, इसके बहुत सारे फायदे भी मौजूद हैं, ठीक है। साथ साथ फायदे के साथ साथ जो है वो कुछ नुकसानात भी जो है वो इसमें फेस करने को हमें मिल रहे होते हैं। इसका नुकसान ये है कि आपके पास जो है वो पावर जो है वो कम हो जाती है, और आपके पास सम टाइम जो है वो लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ऑल यू हैव टू बी कंसर्न विद द वन ऑफिस, व्हाटएवर यू हैव क्वेरी। मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसला जो है वो आपके पास जो है वो कोई और चारा नहीं है, आपको जो है सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब कि आपको अपने मेन ऑफिस में डिस्कस करना ही करना है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट यूनिट्स बना दिए जाते हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि आपके पास जो कंपनी है उसका जो है एक सब ऑफिस बना दिया गया है सिंध के अंदर, दैट इज इन कराची। अब पूरे सिंध में जितने भी आपके पास लोग मौजूद हैं, जितने भी आपके एम्प्लॉयज मौजूद हैं, they are not conducting meeting, or they are not supposed to be informed each and everything directly to the company owner or the higher management। मतलब उनको कोई भी जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे पहले जो है वो अपने रीजनल मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर से जो है वो रब्ता करेंगे। अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो वो आगे जो है अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएंगे। ये तो जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फॉर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। अब प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा आपको समझ आ गया क्या सिनेरियो बनाया गया है। अब पब्लिक सेक्टर को पढ़ लेते हैं। द पर्पस एंड डायरेक्शन of the organization, the mission is developed by a task team. Senior, middle, and junior manager review the update the mission, vision, and value annually to ensure they support policy and strategy. Leader invite input from stakeholder while the employee involved initiating monthly update meeting and customer service seminar. The value have been placed on health part for every employee and are continually re-emphasize at monthly update meeting. Leader act as the role model and have a list of the role model standard to follow, which are the measure against in their performance management system. All the manager include typical quality management objective, edits, performance agreement, and person development plans, which are reviewed through the review। मतलब जैसे कि आपको पता है ना कि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो लोगों के लिए सेक्टर होता है, मतलब आवाम के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारे पास होते हैं दे आर डायरेक्टली लिंक विद द, आपके पास जो है वो आपकी लोगों के साथ जो है वो डायरेक्टली आपके आवाम के साथ जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। अब लोगों के साथ लिंक्ड होने का क्या मकसद है, उसका मकसद ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो जो टीम है वो टीम ही रिस्पॉन्सिबल थी। जो टीम बनाई गई है वो बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर वेरी पावरफुल टीम।
और उस टीम का मतलब ये था कि जो भी प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए आपके पास एक एक एसओपी बना के रखी गई हो। आप देखते हैं ना, जब भी गवर्नमेंट, जैसे कोविड-19 के ऊपर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की जो पॉलिसी बनाई गई है प्राइवेट सेक्टर में, वो सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है, और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो पॉलिसी मेकर है और जो मिशन और विजन मेकर है और जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट या करके दिखा के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके पास जो है वो बहुत ज़्यादा रूम मौजूद है। अगर कोई चीज़ चेंज भी करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इस तरह नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में हमारे पास क्या होता है, द पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मिशन इज डेवलप्ड बाय टास्क टीम। जो मिशन डेवलप कराया जाता है उसके लिए एक डिफरेंट टास्क टीम बनाई जाती है, और उस टास्क टीम के अंदर जो है वो डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स और डिफरेंट लेवल के लोग और एम्प्लॉयज जो है वो मौजूद होते हैं। और वो जो एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं वो एनुअली और मंथली जो है वो देख रहे होते हैं कि कैसे आपका जो है वो पहले जो भी पॉलिसी थी और स्ट्रेटेजी थी वो किस तरह जो है वो मूव ऑन हो रही थी। अच्छा, इसमें जो है वो जितने आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि दे हैव द प्राइवेट कंपनीज, तो प्राइवेट कंपनीज में जो है वो अवाम जो है वो इंटरलिंक होती है। तो अवाम इंटरलिंक होने की वजह से जितने भी आपके स्टेक होल्डर जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनके साथ जो है वो डिस्कस करके इनिशिएटिव लिया जाता है। और जो है वो हर महीने जो है वो एक मंथली रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको मॉनिटरिंग किया जाता है डिफरेंट तरीकों से। और द लीडर, आखिर में जो लिखा हुआ है, द लीडर्स एक्ट एज रोल मॉडल एंड दे हैव अ लिस्ट ऑफ रोल मॉडल स्टैंडर्ड टू फॉलो। मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जो भी मतलब कि प्रैक्टिस होती है किसी भी लीडर की, तो प्राइवेट सेक्टर में उसके पास जो है वो प्ले करने का बहुत ज्यादा जो है वो रूम मौजूद होता है, कि उसको पता नहीं है कि मेरे से जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इस तरह के सवालात कर लिए जाएंगे क्योंकि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि उसका जवाब मैं अपने हिसाब से दे सकूं। हर चीज जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो नोट डाउन कराई जाती है, पहले लिखा हुआ होता है। देखिए, जब भी कोई प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो भी ऐसे ही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट बॉडीज से जो है वो अपने आप को असिस्टेड करवाना पड़ता है, और आपको जो है वो उनकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो अपने आप को सिंक्रोनाइज करके चलना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लीडर्स एक्ट एज अ रोल मॉडल एंड हैव टू have a listed of model standard to follow, which are measured against in their performance management system. All manager includes the TQM objective in their performance agreement and personal development plan, which are reviewed through the review. So after this concept of changing the culture, and उसमें अच्छी खासी जो है वो हमने बात कर ली है, and then we have the effective leadership. So effective leadership start with the chief executive and his top team vision, capitalizing on market or service opportunities, continues through a strategy that will given the organization competitive or the advantage and lead to business to services success. It goes on embrace all the belief and values held, the decision taking and the plan made by anyone anywhere in the organization, and the focusing
of them into effective value adding action together. Effective leadership and total quality management result in the company or organizing doing the right thing right first time. देखिए इफेक्टिव का मतलब सबसे पहले जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बिफोर वी हैव टू गेट अंडरस्टैंड द इफेक्टिव लीडरशिप